گزارش کر رہا ہوں کہ سبھی حضرات خاموشی کا ماحول بنائے رکھیں اور استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب کا بیان سے سبھی حضرات وابستہ ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله العظيم۔ آج الحمدللہ ہماری مسجد کا تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا۔ سنانے والا اور سننے والے جتنے بھی مقتدی حضرات ہیں سبھی قابل رشک ہے اور قابل تعریف ہے، کیونکہ تراویح میں قرآن شریف سنانا بہت مشکل ہے۔ یہ پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سننے والا کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ جو مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھ رہا ہے، سنا رہا ہے، وہی اس کیفیت کو جان سکتا ہے۔ جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں محراب۔ محراب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ محراب کہتے ہیں عربی میں لڑائی کی جگہ، جنگ کی جگہ، جہاں لڑائی ہوتی ہے۔ امام محراب میں کھڑے ہو کر چونکہ شیطان کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں۔ منبر پر بیٹھ کر بیان کرنا یہ بہت آسان ہے، اور سامنے بچوں کو بٹھا کر پڑھانا یہ بھی آسان ہے۔ کتاب لکھ دینا یہ بھی آسان کام ہے، گشت کر لینا یہ بھی آسان کام ہے، اور تعلیم کرنا یہ بھی آسان کام ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں مصلی پر کھڑے ہو کر 30 پارے پڑھنا، قرآن شریف سنانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ پیچھے والے تو کھڑے ہو کر یہی دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ امام صاحب کھڑے بالکل اندھیرے میں چپ چاپ، اور ہر 2 رکعت کے بعد پانی پیا جا رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، ماشاءاللہ سفید کپڑے، صاف ستھرے کپڑے۔ لیکن یہ جتنا دکھنے میں آسان ہے حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ پورے دن محنت کرنا، قرآن یاد کرنا، اور اس کے بعد جب مصلی پر کھڑے ہوں گے تو یہاں اس رکوع پر رکوع کرنا ہے، یہاں رکعت پوری کرنی ہے، یہاں رکعت سے اٹھنا ہے، اور جو وہ مین غلطی ہے جہاں صبح پارا سناتے ہوئے میری غلطی آ گئی تھی اس کو یاد رکھنا ہے، وہاں غلطی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو جو قرآن شریف سنانے والا ہے اور سننے والے ہیں سارے ہی حضرات قابل تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سنانے والے اور سننے والے سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنا دین کا داعی بنا، اپنا دین کا محافظ بنا، اپنا دین کا اور قرآن کا مبلغ بنا۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی شروع میں آیت پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اتارا یہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے تو یہ سیدھی راہ دکھائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس جب قرآن بھی ہے، مسلمانوں کے پاس گلی گلی میں جب حافظ بھی ہے، مسلمانوں کے پاس جب گلی گلی میں اب تو علماء بھی ہو گئے، مسلمانوں کے پاس جب بھی موبائل کھولتے ہیں اس میں بیان کرنے والا مبلغ اور خطیب آ جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس فجر کے بعد، عصر کے بعد تعلیم کرنے والے امام صاحب موجود ہے، مسلمانوں کے پاس ہر ہفتے گشت کرنے والی تبلیغی جماعت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا پچھلے 100 سال میں جتنا سامنا مسلمان کر رہا ہے کسی دوسری قوم نے اتنا سامنا نہیں کیا۔ سب کچھ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। और कुरान करीम में जगह जगह ये भी है, हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जब सब कुछ मुसलमानों के पास है तो गुज़िश्ता 100 सालों में सबसे ज्यादा जो मारा गया है, जो जिल्लत का सामना हुआ, वो मुसलमानों को ही क्यों हुआ है? ये सोचने वाली बात है। और ये जवाब दिया है कुरान करीम ने, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। मुसलमानों ने कुरान से नफा नहीं उठाया, मुसलमानों ने कुरान को समझने की कोशिश नहीं की है, मुसलमानों ने कुरान करीम को अपना मकसद नहीं बनाया। अब देख लो, अरब की और इस्राइल की जंग है, रोजाना खबरें पढ़ते हैं, लेकिन किसी को डिटेल के साथ और तफसील के साथ मालूम नहीं होगा कि दोनों में जंग क्यों हो रही है। ये तो पता है कि ये मुसलमान है, ये यहूदी है, ये मुसलमान है, अरब है, ये इस्राइल है, और इनमें जंग चली आ रही है, लेकिन इस जंग का सिरा कहां से जाकर निकलता है ये किसी मुसलमान को मालूम नहीं होगा। और जो मुसलमानों को हैंडल करते हैं, जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मुसलमानों के आलिम बने बैठे हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान अपने मकसद को समझ जाए। बर्मा में ले लो या किसी दूसरे मुल्क में ले लो, अफगानिस्तान जाकर देख लो, अफगानिस्तान में कोई खजाना नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन वहां सारे अमेरिका ने मिलकर और नेटो ने मिलकर हमला कर दिया। इजराइल 80 साल से तकरीबन फलस्तीन पर हमला आवर है, कोई नहीं जानता है कि इस जंग का मकसद क्या है। वजह इसकी है कि जानने की कोशिश नहीं की है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। मुसलमानों ने कुरान शरीफ से हिदायत लेने की कोशिश नहीं की। हाफिज तो बन जाएंगे, सुबह शाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 5 नमाजों की 4 रकात में कुरान करीम की तिलावत होगी। जब सुबह को दुकान खोलेंगे तो दुकान खोलने के बाद सूरह बकरा चला देंगे, सूरह रहमान चला देंगे, ताकि मेरी दुकान में कोई जिन्नात ना आ जाए, ताकि मेरी दुकान में बरकत ही बरकत हो, ताकि मेरी दुकान पर किसी की नजरें बद न लगे, ताकि मेरी दुकान में कोई चोरी ना हो जाए, ताकि मेरी दुकान और बिजनेस में कोई घाटा ना हो जाए। इस नियत से सूरह बकरा को मोबाइल में चला तो देंगे, लेकिन सूरह बकरा में है क्या, क्या उसमें बयान किया गया है, क्या अल्लाह ताला ने किस लिए इसको उतारा है, ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। यह है सबसे बड़ी वजह। 10 साल से परचून की दुकान है, 10 साल से सूरह बकरा परचून की दुकान में चला रहा है, लेकिन सूरह बकरा की पहली लाइन का मतलब क्या है कभी नहीं बता सकता। तो यह कुरान करीम अजीम शान किताब है, इसको समझने की जरूरत है, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी। हाफिज साहब पूरे साल कुरान सुनाने वाला पूरे साल मेहनत करता है, उसके बावजूद तरावीह में गलती आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये तो वैसे भी इमाम साहब ये आयत फजर की नमाज में बहुत पढ़ते हैं कि अगर हम इस कुरान करीम को जमीन और आसमान पर नाजिल कर देते इंसान के बजाय, अगर हम ये कुरान जमीन और आसमान और दीगर मखलूकात को दे देते तो खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, वो जमीन और आसमान और कायनात अल्लाह के सामने अल्लाह के डर की वजह से झुक जाती और वो रेजा रेजा हो जाती। गलतियां तो अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार इमाम साहब इनकी गलतियां बहुत आती है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल गलती बहुत कम आई है पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन गलती आना ये कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फनसिया आदम, कुरान करीम में है कि भूल तो हजरत आदम को भी लग गई थी। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे,
4 रकात वाली नमाज थी, 2 रकात पर बैठकर हुजूर ने सलाम फेर दिया। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह अक़ुसिरतिस सलातु अम नसीता या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल नमाज मुख्तसर हो गई या आप भूल गए? हुजूर ने फरमाया कि ना नमाज मुख्तसर हुई और ना मैं भूला। सहाबी कहने लगे कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो हुआ, या तो नमाज मुख्तसर हुई या आप भूल गए। हुजूर ने दीगर सहाबा से पूछा कि बतलाओ भाई नमाज हुई या नहीं हुई है, कितनी रकात हुई? तो सहाबा ने कहा कि जी हाँ, 4 रकात के बजाय आपने 2 रकात पढ़ा दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं और मेरे से भी भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, लिहाजा अगर मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिला दिया करो। तो हजरत आदम से भी भूल हो गई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी भूल हो जाती थी, सहाबा किराम से भूल हो जाती थी। इसी महल्ले के एक कारी साहब है, इमाम साहब, एक दफा वो मस्जिद में सुना रहे थे, गालिबन बड़ी आल में, पूरे कुरान में कहीं भी गलती नहीं आई, पूरे कुरान में इन्ना आतेना में जाकर आई, पूरे कुरान में। सब जानते हो हाफिज साहब को, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं। पूरे कुरान में कहीं भी गलती नहीं आई, इन्ना आतेना में जाकर आई है। तो कहीं भी गलती, और आमतौर से इमाम साहब की गलती वही आती है जहां उसको यकीन होता है कि ये पारा मेरा तो बहुत पक्का याद है, यहां तो बिल्कुल भी गलती नहीं आ सकती, वहीं आ जाती है गलती। इसीलिए इस जगह को मेहराब कहते हैं। तो कुरान करीम जो आज मुकम्मल हुई है, ये बड़ी अजीम शान किताब है। इसको समझने की, समझाने की, पढ़ने की, पढ़ाने की सभी हजरात नियत करें और कोशिश करें। इसी साल दारुल उलूम से, गालिबन वो दिल्ली के थे, तकरीबन 60 या 65 साल के एक डॉक्टर, जिनके सर के बाल भी सफेद और दाढ़ी के बाल भी सफेद, वो फारिग हुए हैं। सब आप जानते होंगे, खबर भी आई होगी मोबाइल पर। दाढ़ी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इल्म हासिल करने की और कुरान सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इल्म हासिल करने की, कुरान सीखने की, कुरान समझने की, कुरान को अपनी जिंदगी में लाने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, एक और बात बतला दूं, आमतौर से जब रमजानुल मुबारक का आखिरी वक्त आता है तो ये कहते हैं कि सुनने सुनाने वाले को पैसा देना जायज नहीं है। सुनने सुनाने वाले को पैसा देना जायज नहीं है कुरान की वजह से। क्यों? कुरान एक आजीम शान किताब है, पूरी दुनिया में इसके लेवल की, इसके बराबर की कोई किताब नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1450 साल से अरसा गुजर गया है। कुरान ने चैलेंज दिया था कि अगर तुम मुझे ये समझते हो कि मैं भी और किताबों की तरह एक किताब हूं, तो मेरी तरह एक आयत बनाकर दिखा दो। 1450 साल गुजर गए हैं, सारे यूरोप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, बड़े बड़े अदीबों को तनख्वाहों पर रखकर मेहनत करा ली, सारे मुस्तशरिकीन ने बीवी बच्चों को छोड़ दिया कि हम कुरान के बराबर का लाए। 1450 साल का अरसा गुजर गया, कोई एक शख्स भी कुरान के बराबर की एक आयत नहीं बना सका। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान वला ताकुलू बिही वला तस्तक्सिरू, इक़राउल कुरान वला ताकुलू बिही वला तस्तक्सिरू बिही, कि कुरान को पढ़ो और इसके जरिए से माल ना खाओ और इसके जरिए से माल को ना बढ़ाओ। इसलिए उलमा कहते हैं कि कुरान सुनने सुनाने वाले को पैसा देना जायज नहीं है। इसी तरह कुरान करीम में है, वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, कि मेरी आयतों को कुरान पैसों के बदले में और समन कलील के बदले में न बेचो। ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे घरों में कुरान सुनाया जाता है और वो ये कहते हैं कि नहीं, ये कुरान सुनने सुनाने का पैसा नहीं है, ये तो हदिया है, ये तो ईदी है, ये तो हमारी तरफ से गिफ्ट है, और चलो जी बेचारा गरीब का बच्चा है, थोड़ा सा इसकी ईद मन जाएगी, कपड़े ले लेगा। किसी भी नाम से दो, किसी भी नाम से दो, चाहे हदिया दो, चाहे गिफ्ट ले,
गिफ्ट की नियत करके दो और चाहे गरीबी का सहारा लेकर दो। कुरान सुनाने के बाद पैसा लेना देना जायज नहीं है। वो ऐसे कुरान सुनने वाले को न सवाब मिलेगा, न सुनाने वाले को सवाब मिलेगा, न घर में सुनवाने वाले को सवाब मिलेगा, न पढ़वाने वाले को सवाब मिलेगा। और जिन मुक्तदियों ने पीछे ऐसी नियत कर रखी है उनको भी सवाब नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हाफिज साहब न मिलता हो तो अलम तरा से पढ़ना जरूरी है, कुरान सुनाना जायज नहीं है। अगर कोई ऐसा इमाम साहब न मिलता हो, असल में मैं इसलिए बात कह देता हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मुझे शरीयत की तशरीह करनी है। डर उनको लगना है जिनको इमामत का खतरा हो, डर उसको लगेगा कि जिसको मदरसे से निकलने का खतरा हो। मुझे कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं साफ साफ बयान कर देता हूं। पूरी दुनिया में 2-4 आलिम हैं जो ये कहते हैं कि कुरान सुनने सुनाने के बाद पैसा लेना जायज है। एक मुफ्ती ज़रवली खान साहब है, हुफ़ाज़ किराम कुरान सुनने सुनाने वाले आखिरी अशरे में उनकी वीडियो बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। जो कुरान सुनने सुनाने वाले हैं खास तौर से उसके व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेजते हैं कि जहां कुरान सुनाया जा रहा है, मुतवल्लियों को, जिम्मेदारों को, उनके व्हाट्सएप पे वो शॉर्ट वीडियो भेजेंगे जिसमें मुफ्ती ज़रवली खान साहब ये कहते हैं कि पैसा लेना देना वो जायज है। सिर्फ 1-2-4 आलिम है, वरना किसी ने पूरी दुनिया में इसके जायज होने का फतवा नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात यह है, यह तो हो गया कुरान का लेना देना, लेकिन एक होता है कि इमाम साहब को देना। इमाम साहब को रमजान के आखिर में तरावी खत्म होने पर देना। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि डबल तनख्वाह दे दी, और इसी तरह अभी खबर आई थी कहीं पर कि शिफ्ट कार दे दी कुरान सुनाने वाले को, मोटरसाइकिल दे दी इमाम साहब को। ये जायज है। आ रही बात समझ में? कुरान सुनना सुनाने के बाद उसकी वजह से पैसा देना अलग बात है, लेकिन इमाम साहब को हदिया देना ये जायज है, वो नाजायज नहीं है। बहुत सारी जगहों पर दिया जाता है। अभी एक इमाम साहब रिटायर हुए हैं, मुक्तदियों ने 9 लाख रुपए दिए हैं उनको, 9 लाख रुपए। कहीं पर मोटरसाइकिल दे रहे हैं तो वो जायज है। क्यों जायज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरिमू हमलतल कुरान, हाफिज कुरान की इज्जत करो। अकरिमू हमलतल कुरान, हाफिज कुरान की इज्जत करो। फमन अकरमहुम अकरमनी, जिन्होंने उसकी इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। वमन अकरमनी अकरमहुमुल्लाह, और जिसने मेरी इज्जत की उसने अल्लाह की इज्जत की। इसलिए इमाम साहब को हदिया दे देना, चाहे वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, और गाड़ी। अब वहां इमाम हरम को देख लो, सऊदिया में जब इमाम हरम का कुरान पूरा होता है तो कोई फ्लैट दे देता है, कोई गाड़ी दे देता है, फला मुल्क में प्रॉपर्टी दे देता है, साथ में कागजात दे देते हैं। तो वो इसी गरज से होता है, इमाम साहब की इज्जत करना और इमाम साहब को हदिया देना ये जायज है। ये उस मसले में नहीं आता जो मैंने पहले बतलाया है, वो अलग मसला है, ये अलग मसला है। और मुझे इसलिए बयान करने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि कब तक छुपाया जाए लोगों से। लोग ये कहते हैं कि भाई अगर तुम ऐसे मसले बयान करोगे कौन तुम्हारे से मसला पूछेगा? ना पूछो भाई मसला। लोग ये कहते हैं कि अगर तुम ऐसे मसले बयान करोगे, मैंने एक को ये बात कह दी तो वो कहने लगा कि अच्छा अब तुम इमाम साहब को चिढ़ होने लगी कि भाई वो पूरे दिन मेहनत करता है, वो पसीना बहाता है, वो कुरान याद करता है, तो उसको पैसे भी नहीं लेने देता। एक वो भी पैसे ले रहा है, वो भी पैसे ले रहा है, इमाम साहब पैसे नहीं ले सकता। तो देखो भाई, इमाम साहब को, कुरान सुनाने वाले को कुरान के बदले में सवाब मिल रहा है। लेकिन अगर हम हाफिज साहब की इज्जत की नियत से, हौसला अफजाई की नियत से और उनकी मेहनत को सामने रखते हुए 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 50 लाख, आजकल तो हाफिजों के बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए हैं। आपके सामने मोबाइलों पर बड़ी खबरें आती है, और सिर्फ रमजान में नहीं है,
رمضان میں دے دو بہت اچھی بات ہے، پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں، پورے سال میں بھی دینا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اس کو ہلکے میں نہ لے، خود بھی سیکھنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرے، اور جو حافظ قرآن ہے اس کی بھی عزت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہ معاف کرانے کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ہم کس سے معافی مانگے؟ یا اللہ ہم کس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے؟ یا اللہ ہم کس کے سامنے جھولی پھیلائے؟ یا اللہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور سے بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے کمزور سے بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے کمزور سے بندے ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے گوشت اور ہڈیوں کو جہنم میں ڈال کر کیا ملے گا؟ یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈال کر تجھے کیا ملے گا؟ یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈالنے کی وجہ سے تیری بڑائی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ہمیں معاف کرنے کی وجہ سے تیری کبریائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ تیرے سامنے آج جھولی پھیلا رہے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور تیرے یہاں سے تو روزانہ مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ یا اللہ ان مغفور لوگوں میں، مغفرت پانے والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما، یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ ہم بہت اتنے گنہگار ہیں کہ جیسے روزہ رکھنے کا حق تھا، ہم نے تیرے روزوں کا مذاق اڑایا، تیرے قرآن کا مذاق اڑایا، یا اللہ تیری سنتوں کا مذاق اڑایا، تیرے دین کا مذاق اڑایا۔ جیسے قرآن سننے سنانے کا حق تھا اس حق کو ادا نہ کر سکے، یا اللہ پھر بھی تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پر جاتے ہیں، ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دو دفعہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ بھی کھول ہی دیتا ہے۔ یا اللہ آج تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ بچے جو سارے رمضان شور مچا رہے تھے، یا اللہ یہ معصوم ہے، آج ان کی بلند آواز ہے آمین آمین پر، یا اللہ انہی کے طفیل سے ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ میں نے پچھلے سال بھی یہی بیٹھ کر بات کی تھی، بہت سارے لوگوں کو پہلی صف میں دیکھا تھا، اس سال وہ نہیں ہے۔
या अल्लाह तूने हमें रमजान अता किया है, या अल्लाह तूने हमें रमजान अता किया है। ना मालूम बहुत सारे आज से अगले साल रमजान में नहीं होंगे। या अल्लाह आज तो तू हमें मगफिरत का परवाना दे ही दे। या अल्लाह तू हमें माफ फरमा, या अल्लाह तू हमें माफ फरमा, या अल्लाह तू हमें माफ फरमा। या अल्लाह हम माफी के काबिल नहीं है। हर साल इसी तरह बैठकर माफी मांगते, हर साल इसी तरह आमीन आमीन कहते हैं, हर साल इसी तरह कुरान सुनाना हो। या अल्लाह हमारी दुआएं तो और हमारे आमीन तो सजा के मुस्तहिक है। हमने तेरे कुरान का भी मजाक उड़ाया, तेरे सामने दुआओं का भी मजाक उड़ाया। या अल्लाह अगर हम सच्चे दिल से आमीन कहते, दुआ करते तो हमारी जिंदगियों में तब्दीली आई होती। या अल्लाह हम इसी तरह हर साल आमीन कह कर उड़ जाते हैं, हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। या अल्लाह हमें जबरदस्ती अपना नेक बंदा बना ले। या अल्लाह जबरदस्ती नेक बंदा बना ले। या अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। तूने खुद ही तो कहा है कि हमारा दिल तेरी दो उंगलियों के दरमियान है। या अल्लाह हमारा दिल पलट दे और अपना नेक बंदा बना ले। या अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह हमें नेक बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह मासूम बच्चे भी है, उम्र दराज भी है, या अल्लाह उन्हीं के तुफैल से हमारी मगफिरत फरमा। या अल्लाह कुरान सुनने सुनाने वाले हाफिज साहब और सामे को, इनको इनकी भी मगफिरत फरमा, इनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा और इनको दीन का दाई बना, दीन का मुबल्लिग बना और इनको दीन का हिफाजत करने वाला बना। या अल्लाह ये कुरान आखिरी कलाम है। सारी दुनिया में कुरान की रुसवाई हो रही है। पहले जमाने में किसी गैर मुस्लिम की हिम्मत नहीं थी कि तेरी शान में, तेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता। या अल्लाह ये हमारे ईमान की कमजोरी है, जब जो चाहे तेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है और हम बेबस खड़े रहते हैं। या अल्लाह हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि अब गैर मुस्लिमों ने तेरी शान में गुस्ताखी भी शुरू कर दी और कोई मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। फलस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है और हम सारे मुसलमान बेबस है। या अल्लाह हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है। या अल्लाह हम सब ही इसकी वजह है। या अल्लाह हमें माफ फरमा। या अल्लाह हमें माफ फरमा। या अल्लाह हमें माफ फरमा। या अल्लाह हमें अपने खास बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह बेनमाजियों को नमाजी बना। या अल्लाह बहुत सारे लोग बीमार है, बहुत सारे लोग बीमार है, सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जो बीमार, बहुत सारे लोग इस तरह बीमारी में है, अपनी बीमारी से बिल्कुल परेशान आ गए हैं, तंग आ गए हैं। या अल्लाह उनको भी सुकून की जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी मगफिरत के फैसले फरमा और जिनकी मगफिरत के फैसले हो गए हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह हमें हलाल रोजी अता फरमा, हराम रोजी से और रिज्क से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह गली गली में सूदी कारोबार फैल गया है। या अल्लाह हमारी सूद से हिफाजत फरमा, हलाल रोजी हम सब का मुकद्दर फरमा। या अल्लाह हम सब को पक्का सच्चा नमाजी बना, पक्का सच्चा दीनदार बना, पक्का सच्चा कुरान का मुबल्लिग बना, अपनी मस्जिदों को आबाद करने वाला बना। या अल्लाह तबलीगी जमात की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मरकज की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस की, मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कुछ सालों में गैर मुस्लिमों की और हुकूमत की मरकज निजामुद्दीन और तबलीगी जमात पर बहुत गहरी नजर है। या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे बड़ों की हिफाजत फरमा, छोटों पर रहम फरमा और हमें अपने खास बंदों में शामिल फरमा। जब तक दुनिया में रहे हमें मोमिन बना, अपना पक्का सच्चा मुसलमान बना और जब दुनिया से जाने लगे तो हमारा खात्मा ईमान पर मुकद्दर फरमा, हमारा खात्मा ईमान पर मुकद्दर फरमा और आखिरत में जन्नत का दुखूल अव्वली नसीब फरमा। बगैर हिसाब किताब के जन्नत का दुखूल अव्वली नसीब फरमा, जन्नत का दुखूल अव्वली नसीब फरमा। या अल्लाह जो रमजान के बाकी अय्याम रह गए हैं उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गए हैं वो भी अता फरमा। या अल्लाह तेरे नबी ने खैर की लाइन से जो भी दुआएं मांगी है उन सब में हमारा भी हिस्सा नसीब फरमा और जिन चीजों से पनाह मांगी है हम सब को भी उन चीजों से महफूज फरमा। या अल्लाह हम सब को महफूज फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल करम से और अपने हबीब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
तुफैल से हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी दुआ कबूल होने के काबिल नहीं है, हम मुस्तहिक नहीं है, हमारी दुआएं कबूलियत के मुस्तहिक नहीं है, बगैर इस्तिहकाक के बगैर काबिलियत के हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी तरफ इस नज़र से न देख कि हम लायक है या नहीं लायक है। या अल्लाह तो हर हाल में अपने खास बंदों में शामिल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।